Bismillahirrahmanirrahim. This is Akil Wahab Siddiqui, and today I will show how to draw a network diagram. So far we have talked about plan schedule management, define activities, sequence activities, estimate activity duration process. But prior to start my talk on network diagram, I would like to recap some important topics first. As you know, the first official document in project management is the project charter, which is the first official document which contains the description of a project, it contains the justification of a project, it talks about high level requirements, it gives us deadline, it talks about what are the key stakeholders involved in your project, what will be the power of a project manager, and what are the pre-assigned team members, and some other important information. Then project manager takes project charter, and based on the project charter, since it contains high level list of stakeholders, so they find out how many team stakeholders will be involved in it. Based on the stakeholder register and stakeholder analysis matrix, then a project manager will prepare a project management plan, and after the project management plan, project manager assign team members to gather requirements from the stakeholders. And there are two documents, requirement documentation and requirement traceability matrix. Based on the requirement documentation and requirement traceability matrix, in requirement traceability matrix we correlate our requirements with the project objectives. Next thing is to compile your requirement documentation into comprehensive document, that is called scope statement. It also talks about what is included in the project. Then based on the project scope statement, project manager try to create work breakdown structure. A work breakdown structure is a graphical representation of your project from top to down, and we also explain each and every work package of work breakdown structure. That document is called work breakdown structure dictionary. So next thing is, then when we have project scope baseline, means project scope statement, work breakdown structure, and work breakdown structure dictionary. Based on these three documents, we further start our work in time management process, where first official document is plan schedule management process. So plan schedule management process provides a detailed plan that represents how and when the project will deliver the product, services, and result, defined in project scope, and serves as a tool for communication, managing stakeholders' expectation, and basis for performance reporting. This schedule management plan is a part of project management plan. It specifies how the project schedule will be developed, monitored, and controlled, and it talks about who will be involved, what approach we will take to plan the schedule for the project, what organizational processes, procedures will I use to create the schedule. So next, after the plan schedule management process, next thing is to work on define activities process. What is define activities? Define activities is the process of identifying, documenting the specific actions to be performed to produce the project deliverables. As I've mentioned earlier, to work on define activities process, you need your scope baseline, which contains three documents: project scope statement, work breakdown structure, and work breakdown structure dictionary. So a project manager will take scope baseline, and in this process it will further decompose your work packages into more manageable, more smaller components, where we can assign resources, where we can easily estimate the duration of the activities. So the key benefit of this process is that it decomposes work packages into activities that provide for the basis of estimating, scheduling, executing, monitoring, and controlling the project work. So when we complete our define activities process, we produce three documents. Number one is activity list. Activity list document contain list of activities along with some description. Next document we produce is called activity attributes, where it contains activity list, activity attributes list, its description, its predecessors, relationship between different activities, leads and lags, successor, number of resources required for the activity,
skill requirement, type of efforts, location of the performance, and different kind of deadlines. And next thing is to prepare milestone list. Milestone list आपकी किसी भी पॉइंट को अचीव करने का नाम होता है, किसी एक्टिविटी का नाम नहीं है. इसमें आप कोई एक्टिविटी नहीं करते, बल्कि आप करते क्या हो, आपका एक सिग्निफिकेंट पॉइंट अचीव करने का नाम होता है, जिसको कहा जाता है माइलस्टोन लिस्ट. जैसे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीटेड, ये आपका एक माइलस्टोन है. जैसे आपने कहा कि स्कोप बेसलाइन हम कंप्लीट करेंगे, तो स्कोप बेसलाइन आपको हो जाएगा. सो जब आप आज चूँकि हमने स्टडी करना है नेटवर्क डायग्राम किस तरह से ड्रॉ की जाती है, टू वर्क ऑन नेटवर्क डायग्राम विच इज़ डन इन सीक्वेंस एक्टिविटीज़ प्रोसेस, यू नीड योर स्कोप बेसलाइन, अलॉन्ग विद यू नीड योर एक्टिविटी लिस्ट, एक्टिविटी एट्रीब्यूट लिस्ट एंड माइलस्टोन लिस्ट विच आर द आउटपुट ऑफ डिफाइन एक्टिविटीज़ प्रोसेस. सो चलें आज हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं. नेटवर्क डायग्राम में हम बेसिकली एक्टिविटीज़ को सीक्वेंस करते हैं. फॉर एग्जांपल डिफाइन एक्टिविटीज़ प्रोसेस में आपने 100 एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई कर ली. अब यू कैन नॉट स्टार्ट योर ऑल 100 एक्टिविटीज़ ऑन सेम डे. सो आपने डिसाइड करना होगा कि विच एक्टिविटी विल टेक फर्स्ट, और उसके बाद फिर कौन सी एक्टिविटी होगी, फिर उसके बाद कौन सी एक्टिविटी होगी. तो जब व्हेन वी सीक्वेंस अवर एक्टिविटीज़, दैट इज़ कॉल्ड अ नेटवर्क डायग्राम. सो नेटवर्क डायग्राम में जब हम नेटवर्क डायग्राम डिज़ाइन कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर हमारा काम क्या होता है, हम उसकी रिसोर्सेज फाइंड करते हैं. फिर उस रिसोर्सेज की बेस पे हम उसकी ड्यूरेशन फाइंड करते हैं. फिर उसके बाद हम ड्यूरेशन अप्लाई करते हैं अपनी नेटवर्क डायग्राम पे, और नेटवर्क डायग्राम पे जब हम ड्यूरेशन अप्लाई करते हैं, तो फिर उससे हम डिफरेंट पाथ्स जनरेट करेंगे. डिफरेंट पाथ्स जब हमारे जनरेट हो जाएंगे, फिर हम उस पर अपनी क्रिटिकल पाथ को फाइंड आउट करेंगे. फिर हम अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट लेट फिनिश, और उसके बाद हम फिर फ्लोट्स फाइंड आउट करते हैं. तो आज हम ये सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह कवर करेंगे इस क्लास में. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आवर फर्स्ट एक्टिविटी इज प्रोजेक्ट डिलीवरेबल. Next activity is procure hardware and test hardware. Test hardware is dependent on procure hardware, and procure hardware is dependent on project deliverables. Another our activity, which is serial number 4, is procure software tools. Procure software tool is dependent directly on project deliverables. Means in this network diagram we will have two paths, and then we have write program activity, which is dependent on procure software tools. Then we have test and debug activity, which comes right after write program. Then we have install activity, which is dependent on activity number 3 and activity number 6. Then we have training, and last activity is acceptance. So दिस इज़ अ नेटवर्क डायग्राम, और इसको मैं आपके लिए ड्रा करने जा रहा हूँ, और मैं आपको बताऊँगा. हमेशा याद रखिएगा कि जब आप नेटवर्क डायग्राम पे काम करेंगे, तो जब नेटवर्क डायग्राम पे आप काम करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा यू मस्ट इन्वॉल्व योर टीम मेंबर्स इन दिस वर्क. आप रिक्वायरमेंट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आपका काम नहीं होता आप रिक्वायरमेंट गैदर करें. एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपका काम नहीं होता कि आप स्कोप स्टेटमेंट पे डायरेक्टली काम करें या वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पे काम करें. ये सारे के सारे काम जो होते हैं, यू इन्वॉल्व योर टीम मेंबर्स इन दिस वर्क. एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू गेट थिंग्स डन फ्रॉम द टीम मेंबर्स, क्योंकि टीम मेंबर्स होते हैं जिन्होंने काम करना होता है. आप डायरेक्टली उनको कोई भी डेडलाइंस डायरेक्टली नहीं दे सकते. आप उनको इन्वॉल्व करते हो, वो अपना काम डिफेंड करते हैं, और फिर आपका काम चल रहा होता है. सो जब ये हमारे पास, जब मैंने एक्टिविटीज़ डिफ़ाइन की, तो जब मैंने सीक्वेंस के सामने आपकी स्क्रीन पे जो आपको ये नज़र आ रहा है, इसमें ये जो एक्टिविटी एक पे दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये टीम मेंबर्स डिसाइड करते हैं. आप इन सब के साथ मीटिंग अरेंज करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर. सो लेट्स टॉक. मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से नेटवर्क डायग्राम डिज़ाइन की जाती है. हमारी फर्स्ट एक्टिविटी थी प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स. मैं इसका नाम P और D रख रहा हूँ, प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स. ठीक हो गया जी. फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी जो है आपकी स्क्रीन में, प्रोक्योर हार्डवेयर, PH उसका मैं नाम रख रहा हूं. फिर उसके बाद दूसरी एक्टिविटी है टेस्ट हार्डवेयर, TH. So PH, procure hardware, is dependent on project deliverables,
and this activity is dependent on PH. Test hardware activity is dependent on procure hardware. फिर उसके बाद हमारे पास एक और एक्टिविटी थी जिसको कहा जाता है procure software tools. प्रोक्योर सॉफ्टवेयर टूल्स के बाद जो एक्टिविटी थी हमारे पास वो थी राइट प्रोग्राम. इसका नाम WP रख रहा हूँ. इस तरह से आप ड्रॉ करते हैं इसको. फिर उसके बाद जो हमारी एक्टिविटी थी वो थी टेस्ट एंड डीबग. टेस्ट एंड डीबग. इस तरह से हम डायग्राम डिज़ाइन करते हैं. फिर उसके बाद हमारी एक्टिविटी थी इंस्टॉल. इंस्टॉल एक्टिविटी इज़ डिपेंडेंट ऑन बेसिकली टेस्ट एंड डीबग एक्टिविटी एंड टेस्ट हार्डवेयर. टू डू डैट हम उसके लिए क्या करेंगे, इंस्टॉल एक्टिविटी को हम यहाँ पे ड्रा कर लेंगे. इंस्टॉल, दिस इज़ माई एक्टिविटी. दिस एक्टिविटी इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन टेस्ट एंड डीबग एक्टिविटी एंड टेस्ट हार्डवेयर एक्टिविटी. जाहिर बात है जब हमारे पास सॉफ्टवेयर को हम टेस्ट करेंगे तो तभी हम टेस्ट सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे. फिर उसके बाद हमारी जो सेकंड लास्ट एक्टिविटी है वो कौन सी है, वो हमारी एक्टिविटी जो है ट्रेनिंग एक्टिविटी है. ट्रेनिंग एक्टिविटी हमारी यहाँ पे आ गई. और लास्ट एक्टिविटी जो है वो थी एक्सेप्टेंस. This is how we draw a network diagram. First thing in project time management is to work on define activities. You take your work packages, you take your work breakdown structure, and you further decompose your work packages into more manageable components. Those components are called activities. Like here we have procure, like project deliverables, procure hardware, test hardware, procure software tools, write program, test and debug, install activity, training activities and acceptance. We have identified these activities for our project. आप अपने टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करेंगे. आपके टीम मेंबर्स जब आप इन्वॉल्व करेंगे इसमें तो आपके टीम मेंबर्स जो हैं वो आपको बताएंगे कि पहले हमने ये एक्टिविटी करनी है, फिर उसके बाद ये, फिर ये. फिर जब उन एक्टिविटीज़ को आप सीक्वेंस करते हैं तो इस तरह से हमारी ये नेटवर्क डायग्राम आपके सामने डिज़ाइन हो जाएगी. इस तरह से ये नेटवर्क डायग्राम आ जाती है. अभी इस नेटवर्क डायग्राम में किसी किस्म की ड्यूरेशन आपको नज़र नहीं आ रही क्योंकि हमने ड्यूरेशन पे काम भी नहीं किया. डिफाइन एक्टिविटीज़ में हम एक्टिविटी लिस्ट, एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स, माइलस्टोन लिस्ट बनाते हैं. नेक्स्ट सीक्वेंस एक्टिविटीज़ में मैं अपने टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करूंगा और इस तरह से मैं नेटवर्क डायग्राम डिज़ाइन कर लूँगा. फिर उसके बाद नेक्स्ट काम मेरा क्या होगा, मैं एस्टिमेटिंग पे काम करूँगा. इन 5th एडिशन ऑफ PMBOK, एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेस जो आपकी प्रोसेस था that was first part of project time management. Now in 6th edition this is part of resource management. आप जब नेटवर्क डायग्राम बना लेते हैं तो यहाँ पे अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि प्रोक्योर सॉफ्टवेयर टूल पे कौन काम करेगा, प्रोक्योर हार्डवेयर पे कौन करेगा, टेस्ट हार्डवेयर पे किसने काम करना है, राइट प्रोग्राम पे कौन से प्रोग्रामर्स आपको चाहिए. तो आपने पहले रिसोर्सेज फाइंड करने हैं. जब रिसोर्सेज फाइंड आपके हो जाएंगे फिर उसके बाद आप एस्टिमेटिंग पे चले जाते हैं. लेट्स सपोज हमने रिसोर्सेज आइडेंटिफाई कर लिए कि कितने रिसोर्सेज काम होंगे. जब आपके रिसोर्सेज आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, ह्यूमन रिसोर्स, वर्क रिसोर्स, मटेरियल रिसोर्स, कॉस्ट रिसोर्सेज, तो उसके बाद ही आप फिर ड्यूरेशन अप्लाई कर सकते हैं ना. एक एक्टिविटी है उसके ऊपर आप 2 लोग असाइन कर रहे हैं, 2 टीम मेंबर्स हैं, हो सकता है वो काम 4 दिन में हो जाए. अगर आप 3 असाइन करते हैं तो हो सकता है वो काम 2 दिन में हो जाए. जब हम
एज्यूम करते हैं कि हमने रिसोर्सेज फाइंड कर लिए, उसके बाद हम एस्टिमेटिंग पे जाते हैं। फिर हम टीम मेंबर्स के साथ मीटिंग कॉल करेंगे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, और वहाँ पे हम एक कंसेंसस डेवलप करेंगे बेस्ड ऑन द जस्टिफिकेशन कि दिस एक्टिविटी विल टेक फॉर एग्जांपल 12 डेज टू कंप्लीट, दिस एक्टिविटी विल टेक 2 डेज टू कंप्लीट फॉर इंस्टेंस। सो हम उसके बाद फिर ड्यूरेशन पे काम करते हैं। सो हाउ एस्टिमेटिंग इज डन, यू मस्ट प्रोवाइड इनफ इंफॉर्मेशन टू प्रॉपरली estimate each activity and let them doing the estimating how refined their estimates must be. You must complete a sanity check for the estimates, prevent padding, formulate reserves. So next process is after preparing this network diagram, हमारा next काम क्या होता है कि हम activities की duration find करते हैं. Once activities are defined and sequenced and then type and quantity of resources required for each and every activity, next step is to apply the duration. अब हम assume करते हैं कि हम लोगों ने duration find out कर लिया है. For example, first activity is project deliverable which will take for instance 12 days to complete. So 12 आपने एक्टिविटी के सेंटर में यहाँ पे लिख देना है. फिर उसके बाद आपके पास जो दूसरी एक्टिविटी होगी वो एक्टिविटी फॉर इंस्टेंस 2 डेज लेगी, तो मैं यहाँ पे 2 यहाँ पे लिख लेता हूँ. फॉर एग्जांपल आपके पास टेस्ट हार्डवेयर है तो वो जो है एक्टिविटी आपके पास 8 डेज लेगी. फिर उसके बाद जो है प्रोक्योर सॉफ्टवेयर टूल्स है तो ये एक्टिविटी जो है फॉर एग्जांपल 10 डेज लेगी. राइट प्रोग्राम एक्टिविटी फॉर इंस्टेंस 45 डेज लेगी. फिर उसके बाद टेस्ट एंड डीबग एक्टिविटी है तो टेस्ट एंड डीबग एक्टिविटी हमारी फॉर इंस्टेंस 22 डेज लेगी. इंस्टॉल एक्टिविटी है तो इंस्टॉल एक्टिविटी हमारी फॉर एग्जांपल 8 डेज लेगी. ट्रेनिंग एक्टिविटी 3 डेज ले लेगी. एक्सेप्टेंस एक्टिविटी 1 डे ले लेगी. तो हम लोगों ने यहाँ पे आपने देखा कि इस तरह से हम इस पर ड्यूरेशन अप्लाई कर लेते हैं. और ड्यूरेशन अप्लाई जब हो जाती है तो अब हमारा काम क्या है कि ये जो नेटवर्क डायग्राम है इसमें हमने पाथ्स फाइंड करने हैं. पाथ्स कैसे फाइंड करेंगे, एक पाथ मेरा ये है प्रोजेक्ट डिलीवरेबल, फिर उसके बाद प्रोक्योर हार्डवेयर, फिर उसके बाद टेस्ट हार्डवेयर, फिर इंस्टॉल एक्टिविटी, ट्रेनिंग एक्टिविटी एंड एक्सेप्टेंस. एक पाथ मेरा ये बन गया. दूसरा पाथ मेरा कौन सा बन रहा है, प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, प्रोक्योर सॉफ्टवेयर टूल्स, राइट प्रोग्राम, टेस्ट एंड डीबग, इंस्टॉल, ट्रेनिंग एंड एक्सेप्टेंस. ये मेरा दूसरा पाथ बन रहा है. तो इन 2 पाथ्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं और लिखते हैं फिर अपने सामने. अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपकी आसानी के लिए. अब फॉर एग्जांपल पहली एक्टिविटी है प्रोजेक्ट डिलीवरेबल 12 प्लस प्रोक्योर हार्डवेयर विल टेक 2 डेज टू कंप्लीट 2. फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे इंस्टॉल एक्टिविटी की ड्यूरेशन 8 डेज है, फिर 3 है और फिर इसके बाद 1 है. तो 14 प्लस 8 22 प्लस 8 30 प्लस 3 33 प्लस 1 34. सो पाथ ए की जो मेरे पास ड्यूरेशन आ रही है इन डेज वो है 34 डेज टू कंप्लीट. अब लेट्स एज्यूम कि अनदर पाथ हमारा जो है उसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला है प्रोजेक्ट डिलीवरेबल 12, फिर उसके बाद प्रोक्योर सॉफ्टवेयर टूल्स विल टेक 10 डेज टू कंप्लीट. Afterwards we have write program activity which will take 45 days to complete. फिर उसके बाद we have another activity which will take 22 days to complete. And another activity we have install which will take 8 days to complete. Then we have 3 days and last activity will take 1 day to complete. So this is another path. So 12 plus 10 22 plus 45 67 plus 22 87 plus 22 89 plus 8 97 plus 300 plus 1 101 101. So we have identified 2 paths. एक पाथ हमारा लेगा 34 days to complete, दूसरा पाथ हमारा ले रहा है 101 दिन 101 days to complete. So which one is the longest path? The longest path is called 101. So if I ask you a question कि what is the duration of your project, so my answer will be कि it will take 101 days to complete. The duration of the, अब normally आप किसी ऐसे स्टूडेंट से पूछें, किसी ऐसे टीम मेंबर से पूछें जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नो हाउ नहीं है, तो रफली शायद आपको ऐसे कहता कि 34 प्लस 101 जब आप इसको ऐड करें तो 135 दिन में ये कंप्लीट होगा, जबकि ये गलत है. जो आपका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन किसी भी पाथ का होता है वही आपकी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन होती है. तो आइए अब इस पे काम करते हैं. इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा.
हमेशा याद रखिएगा कि एक एक्टिविटी, जैसे आपको ये एक्टिविटी नज़र आ रही है, इसके 5 एट्रीब्यूट्स होते हैं. नंबर 1 एट्रीब्यूट इज कॉल्ड अर्ली स्टार्ट, ES, एंड अर्ली फिनिश, EF. इसका एक और एट्रीब्यूट होता है लेट स्टार्ट, फिर उसके बाद एक और एट्रीब्यूट होता है लेट फिनिश, और यहाँ पे हम लोग फ्लोट फाइंड करते हैं इस जगह पर. अब मैं आपको बताऊंगा कि ये तमाम अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश हम क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि आपकी तमाम एक्टिविटीज़ पैरेलल नहीं चलती. अब यहाँ पे तो पैरेलल चल रही होंगी जो आपके क्रिटिकल पाथ है. तो ये जो 101 डे है, ये पाथ जो मेरे पास आया, ये मेरा पाथ बन गया क्रिटिकल पाथ. इसको कहा जाता है क्रिटिकल पाथ. अब क्रिटिकल पाथ जब आपके पास आ जाता है तो उसके बाद फिर आपने क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज़ का अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश और फ्लोट फाइंड करना होता है. याद रखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका क्रिटिकल पाथ होगा उसमें आपका जो फ्लोट होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है. ये आप इसको इजीली मेमोराइज कर लें. सो चलें, लेट्स सपोज अब इस पे काम करते हैं कि इसमें अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश और फ्लोट कैसे फाइंड करते हैं. अब यहाँ पे अर्ली, अब प्रोजेक्ट डिलीवरेबल इज़ द फर्स्ट एक्टिविटी इन योर प्रोजेक्ट. सो इससे पहले तो कोई एक्टिविटी नहीं है, तो इसका अर्ली स्टार्ट कुछ भी नहीं है. तो अर्ली स्टार्ट इसका हमेशा क्या होगा, 0 होगा. मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया. अब 0 + 12 को जब आप ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 12. फिर उसके बाद आपने 12 को कैरी फॉरवर्ड करना है यहाँ पे, एंड यू विल ऐड 10 विच इज़ द ड्यूरेशन ऑफ Procure Software Tools with 12. So 12 + 10 becomes 22. Carry forward 22. 22 + 45 becomes 67. 67 को मैं यहाँ पे ले आऊँगा. 67 + 22 = 89. Then we have 89. 89 + 8 is 97. Then we have 97 here. You will add 3 with 97, that becomes 100. In last activity you will carry forward this 100, and जब जिसके साथ आप ऐड करेंगे तो this becomes 101. So this is how we find early start and early finish for activities of critical path. फिर उसके बाद अब यहाँ से तो हम बिगनिंग से गए थे, फर्स्ट एक्टिविटी से गए थे. लेट स्टार्ट और लेट फिनिश फाइंड करने के लिए आपको लास्ट एक्टिविटी से आना पड़ता है. अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपकी इस एक्टिविटी में 101 लिखा हुआ है. तो जब 101 यहाँ पे लिखा हुआ है तो सिंपली आपने लेट फिनिश जो आपकी एक्टिविटी होगी यहाँ पे इसको भी आप 101 लिख देंगे. फिर यहाँ पे आप ऐड कर रहे थे, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 101 - 100, 100 वापस लाएंगे आप. यहाँ पे मैं 100 ले आया. 100 में से 93 आपने सब्ट्रैक्ट किया, 97 आप वापस ले आए, बैकवर्ड पास है. आपने 8 सब्ट्रैक्ट किया, 89 आ गया आपका. फिर आपका 89 बैकवर्ड पास -22 becomes 67. फिर आप 67 आपका बैकवर्ड पास आया. आपने 45 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पे आपके 22 डेज आ जाएंगे. फिर आपने 22 डेज बैकवर्ड पास लाए. 10 आपने सब्ट्रैक्ट किया, 12 आ गया. 12 बैकवर्ड पास पे किया और 12 - 12 is 0. So this is how we find early start, early finish, late start and late finish of critical path activities. मैं फिर बता रहा हूँ कि when you draw a network diagram,
you will find out all paths. The longest path in your network diagram will be critical path. So critical path की early start, early finish, late start, late finish activities आप के जो attributes है आपने पहले कैलकुलेट करनी है. इन एक्टिविटीज़ को मैंने टच नहीं किया क्योंकि इसका मेथड ये है कि पहले क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज़ को आप फिल करते हैं. अब इससे हम फ्लोट फाइंड करते हैं. फ्लोट फाइंड करने के लिए जैसे मैंने बताया कि एक आपके पास एक्टिविटी है, उसमें अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश है, तो या तो आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे या इस अर्ली स्टार्ट से लेट स्टार्ट एक्टिविटी को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो ये काम करने के लिए जब हम कर लेते हैं तो इससे हमें फ्लोट फाइंड होता है. फॉर एग्जांपल 101 minus 101 will always 0. 100 minus 100 will always be 0. फिर हमारे पास 97 minus 97 0. 89 से गए 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0. तो हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका क्रिटिकल पाथ होता है, क्रिटिकल पाथ में आपका फ्लोट हमेशा 0 रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहेगा. तो इस पे आपने परेशान नहीं होना, आप कैलकुलेट करके अपना टाइम वेस्ट ना करें. जब आप जो क्रिटिकल पाथ में आपने वैल्यूज़ फिल कर ली उसका फ्लोट हमेशा 0 रहेगा. फिर उसके बाद अब मेरे पास 2 एक्टिविटीज़ रह गई, प्रोक्योर हार्डवेयर एंड टेस्ट हार्डवेयर. सो इन एक्टिविटीज़ का हम लोग फिर अब अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश फाइंड करेंगे और लेट स्टार्ट, लेट फिनिश फाइंड करेंगे. और फिर आपको आइडिया होगा कि ये एक्सरसाइज करने का एडवांटेज क्या है. वो एक्सरसाइज करने का एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ. 12 यहाँ पे आया हुआ है, 12 में यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करता हूँ. फिर इसके बाद 12 14, फिर यहाँ पे मेरे पास 14 में कैरी फॉरवर्ड किया और 14 + 8 जो है मेरे पास आ गया 22. अब 22 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 22 मैंने यहाँ पे लिखा. तो अब देखें इस एक्टिविटी का मैं कैरी फॉरवर्ड या जो बैकवर्ड पास है वो तो मैं क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी से ही लूँगा क्योंकि इसके बाद यही इंस्टॉल एक्टिविटी थी. बिकॉज इंस्टॉल एक्टिविटी वाज डिपेंडेंट ऑन एक्टिविटी नंबर टेस्ट हार्डवेयर एंड टेस्ट एंड डिबग सॉफ्टवेयर टूल. सो इसका बैकवर्ड पास जो है वो था 89. सो 89 में यहाँ पे ले आया. 89 में से 8 माइनस होंगे, यहाँ पे बैकवर्ड पास हमने 89 लिया, 89 आया. 89 में से जब आप 8 माइनस करेंगे तो आंसर इज 81. फिर 81 आपका बैकवर्ड पास आएगा. 81 में से जब आप 2 माइनस करेंगे तो रिजल्ट इज 79. अब यू विल आइदर डिडक्ट 22 फ्रॉम 89 और 14 फ्रॉम 81. इसमें से इसको माइनस करते हैं या इसको इसमें से माइनस करते हैं. सो लेट्स अज्यूम 89 में से हमने माइनस कर दिया 22 को, तो आपके सामने रिज़ल्ट क्या आ जाएगा? आपके सामने रिज़ल्ट आएगा 67. सो यहाँ पे टेस्ट हार्डवेयर एक्टिविटी का फ्लोट जो है 67 डेज आ गया. 81 में से 14 को जब आप माइनस करेंगे या 79 में से 2 को माइनस करेंगे तो तब भी रिज़ल्ट आपका 67 ही आएगा. तो फ्लोट जो है आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ का जो क्रिटिकल पाथ की थी उनका तो 0 आ गया, लेकिन इन 2 एक्टिविटीज़ का आपने नोट किया होगा इनका फ्लोट 0 नहीं आया बल्कि 67 आ गया. अब ये फ्लोट क्या होता है? फ्लोट आपका वेटिंग पीरियड कहा जाता है. अब आपने जब इंस्टॉल एक्टिविटी आपकी आएगी, इंस्टॉल एक्टिविटी, तो इंस्टॉल एक्टिविटी शुरू होने से पहले ये एक्टिविटी 67 डेज पहले कंप्लीट हो जाएगी. और 67 डेज यानी आपका जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो सॉफ्टवेयर तो आपने डेवलप कर दिया किसी भी लैपटॉप के ऊपर आपके टीम मेंबर से, लेकिन एक्चुअली जब उसकी कॉन्फ़िगरेशन का टाइम आया, जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आया तो आपको सर्वर्स चाहिए थे. वो सर्वर्स आपने 67 डेज पहले परचेज़ करके अपने स्टॉक रूम में रखे हुए हैं. अब फॉर इंस्टेंस ये 67 डेज ना होते, ये 67 वीक्स होते या ये 67 मंथ्स होते, तो 2 महीने 67 मंथ्स या 67 वीक्स आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो आपका ईयर्स में बात चली जाएगी आपकी. तो आपने एक जो सर्वर्स हैं वो मिलियंस कॉस्ट आपको करते हैं, वो अगर आपने 2 साल पहले से लेके रखे हुए हैं तो जब आपकी टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आएगा हो सकता है वो आउटडेट हो जाए.
या 2 साल पहले ये जो आपने सर्वर्स ख़रीदे थे, आपने फॉर एग्जांपल 20 मिलियन में परचेज़ किए, आज उसकी कीमत हो सकता है वो 1 मिलियन पे आ जाए। टेक्नोलॉजी तो आपको पता है बड़ी स्पीड से चेंज हो रही है। तो हम नेटवर्क डायग्राम में फ्लोट फाइंड करके इन्हीं चीज़ों पे एस्टिमेट करते हैं कि क्या ये ज़रूरी है कि ये टेस्ट हार्डवेयर एंड प्रोक्योर हार्डवेयर जो सर्वर्स हैं ये हम अभी से परचेज़ करके स्टॉक रूम में रख लें, या इसको हम बाद में जब ये इंस्टॉल एक्टिविटी हमारी शुरू होने के करीब पहुँचे, क्योंकि ये एक्टिविटी 8 डेज़ टू कंप्लीट लेगी, तो या फिर हम 10 दिन पहले से एक्टिविटी को शुरू करें। तो जब इस तरह के डिसीजंस होते हैं तो तब हम अपनी टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करके करते हैं कि भाई ये आपने अभी से परचेज़ करके रखना है या ये आपने बाद में परचेज़ करना है जब आपकी इंस्टॉल एक्टिविटी शुरू होने लगेगी। सो दिस इज़ हाउ we create a network diagram, we draw a network diagram, and based on the network diagram we find out our critical paths and different paths as well. So in this example हमारे पास 2 path आए हैं। Number 1 path will take 34 days to complete and second path will take 101 days to complete. जब आपके पास जो द लॉन्गेस्ट पाथ विल बिकम द क्रिटिकल पाथ, मोर देन 1 क्रिटिकल पाथ आपकी नेटवर्क डायग्राम में हो सकते हैं, याद रखिएगा ये बात। सो आपके पास जब 101 डेज आ गए, सो बेस्ड ऑन this critical path which you have just identified, you will fill it with the early start, early finish, late start, late finish attributes, where the objective is to find the float for all activities, and second path को फिर बाद में fill करना है। याद रखिएगा कि जो attributes हैं सबसे पहले आप critical path के fill करेंगे, बाकी attributes आप बाद में fill करेंगे जो नॉन क्रिटिकल पाथ होंगे। अगर आपने इनको पहले fill कर लिया और इनको बाद में fill किया तो आपके रिजल्ट सारे के सारे गलत आ जाएंगे, फिर ये आपको 0-0 दे रहा होगा। तो ये इसकी टेक्निक है, इसको याद रखिएगा। और जब आपके सामने तमाम इन पैरामीटर्स को, इन प्रोसीजर्स को आप मेमोराइज़ कर लेंगे और अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आई होप के नेटवर्क डायग्राम ड्रा करने में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। जब हम नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, जब हम एस्टिमेशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डेवलप स्केड्यूल। डेवलप स्केड्यूल प्रोसेस इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कैलेंडर बेस हम बनाते हैं, और उसमें भी फिर काफ़ी टेक्निक्स हैं, फास्ट ट्रैकिंग है, क्रैशिंग है, मॉन्टी कार्लो एनालिसिस है। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ उसको एक्सप्लेन करूँगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।